सलाम भाई। आज आप बड़े खुश दिख रहे हैं। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। मेरे इस साल के रोजे भी कामयाबी से गुजर गए। माशाल्लाह मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, आपको कैसे पता लगा रोजे की कामयाबी का? भाई, मैंने पूरे 30 के 30 रोजे रखे। माशाल्लाह मेरे भाई। अब मेरा एक सवाल है, हम किसी काम की कामयाबी या नाकामी किस बुनियाद पर तय करते हैं? भाई, सीधी सी बात है, जिस मकसद के लिए वो काम किया वो मकसद कितना हासिल हुआ बताएगा कि हम कितने कामयाब हुए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे एक तालिब इल्म की कामयाबी उसके सीखने और नतीजे से देखी जाती है, ना कि इस बात से कि वो कितनी दफा स्कूल गया। इसी तरह हम अपने रमजान की कामयाबी इस बात से देखते हैं कि रोजे का मकसद कितना हासिल हुआ, ना कि सिर्फ रोजों की गिनती से। सही। मैंने कभी इस मुतालिक सोचा नहीं। तो भाई, रोजे का मकसद क्या है जिससे हम रोजे की कामयाबी का अंदाजा लगा सकें? भाई, रोजे का मकसद जानने के लिए आप सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 देखें। भाई, इस आयत के मुताबिक तो रोजे का मकसद तकवा अख्तियार करना है। यानी हमारे रोजे की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि हमने कितना तकवा अख्तियार किया। जी भाई, न सिर्फ हमारे रोजे में बल्कि हमारी कुर्बानी और हमारे हज में भी अल्लाह को हमारे तकवा की तलाश है। आप सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 37 और सूरा नंबर 5 और आयत 27 देखिए। भाई, इन आयात के मुताबिक कोई भी कुर्बानी बगैर तकवा के कबूल नहीं हो रही, और रोजा रखने का मकसद भी तकवा ही है। तो ये तकवा कैसे किया जाता है और हम तकवा कैसे हासिल कर सकते हैं? भाई आइए, हम कुरान से देखते हैं कि अल्लाह तकवा करने वालों की क्या पहचान बताते हैं। जब तकवा करने वालों की पहचान समझ में आ जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि तकवा क्या है, और फिर इस तकवा को अपने ईमानो अमल से चेक करके हमें अपने रोजे, हज और कुर्बानी की कामयाबी का भी अंदाजा हो जाएगा। अब आप पहले सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 देखें और बताएं कि हम किस तरह तकवा वाले या मुत्तकी बनते हैं।
بھائی اللہ نے اس آیت میں متقی یعنی تقوی کرنے والوں کے ایمان اور اعمال کے بارے میں بتایا ہے۔ بالکل صحیح۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ متقی یا تقوی کرنے والوں کا ایمان کیسا ہو، پھر متقی کے اعمال کیسے ہوں وہ دیکھیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اس آیت کے مطابق متقی کا ایمان کس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اس آیت کے مطابق تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے، وہ تو میرا ہے۔ بھائی آپ کا ایمان اللہ پر ہے یا اللہ کے نام پر؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی آپ سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 14 دیکھیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے۔ جی بھائی، آپ اسلام کلمہ پڑھ کر لاتے ہیں اور آپ کا ایمان آپ کے قرآن سے علم کے ساتھ آتا ہے۔ مثلاً کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ یقیناً۔ کیا آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کب رحمان بنتے ہیں اور رحمان بن کر کیا کرتے ہیں، اور اللہ کب رحیم بنتے ہیں اور کس کے لیے رحیم بنتے ہیں، اور اللہ رزاق کس طرح بنتے ہیں، اور غفار کس کے لیے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں سب بیان ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، اور آپ ان صفات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مجھے نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اللہ کو جانتے نہیں، اور بھائی بغیر قرآنی علم کے ایمان نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا ایمان کس پر لانا ہے۔ اگلا ایمان ہمیں آخرت پر لانا ہے۔ جی میرے بھائی، آخرت پر ایمان لانے کے لیے ہمارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کے مطابق وہ کون سے اعمال ہیں جو آخرت میں فائدہ دیں گے اور کون سے اعمال نقصان دیں گے۔ بھائی میں نے آخرت کے بارے میں کبھی قرآن سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا ایمان کس پر لانا ہے۔ اگلا ایمان ہمیں ملائکہ پر لانا ہے۔ جی میرے بھائی، کیا ہمیں قرآن سے اس بات کا علم ہے؟ ملائکہ کون ہیں اور اللہ کن لوگوں پر ان ملائکہ کو بھیجتے ہیں اور کب بھیجتے ہیں، اور وہ ملائکہ اللہ کے بندوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، میں نے کبھی ملائکہ کے متعلق قرآن سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور بس سنی سنائی باتوں سے ان کو پر والا فرشتہ سمجھا۔ تو بھائی ہمیں ملائکہ کے متعلق بھی جاننا ہے ان پر ایمان لانے کے لیے۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا ایمان کس پر لانا ہے۔ اگلا ایمان ہمیں کتاب پر لانا ہے۔ بھائی دوبارہ دیکھیں کتنی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے تو صرف یہاں ایک کتاب کی بات کی ہے۔ جی میرے بھائی، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 2 میں کیا گیا۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق تو متقی یعنی تقوی کرنے والے اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ جی میرے بھائی، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم کتاب پر ایمان لائے تو ہم کتاب کے نام پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کتاب کے اندر دی گئی ہدایت پر۔ مثلاً اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کو ان کی 90 سے زائد ذمہ داریوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم ان میں سے جتنی ہدایت و ذمہ داریوں کو جانیں گے، اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی احکام ہم قرآن سے جانیں گے اور مانیں گے، ہمارا اللہ کی کتاب پر اتنا ہی ایمان ہوگا۔ یا اللہ، میں نے تو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کی بجائے ثواب کی کتاب سمجھا اور عربی میں ہی پڑھا ثواب کے لیے۔ بھائی سورہ 2 آیت 186
और सूरा 17 आयत 9 के मुताबिक कुरान हिदायत की किताब है और हमें पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं मिली जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है। हाँ, मगर कुरान पढ़कर आप जो अमल करेंगे इन पर सजा और जजा जरूर है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि अगला ईमान किस पर लाना है। अगला ईमान हमें नबियों पर लाना है। भाई दोबारा देखें, क्या नबियों पर ईमान लाना है या एक नबी पर ईमान लाना है? अल्लाह ने यहाँ नबियों की बात की है। अच्छा, आइए देखते हैं कि नबियों पर ईमान किस तरह लाना है। आप सूरा नंबर 2 और आयत 136 और 37 देखिए। तो मेरे भाई, इस आयत के मुताबिक हमारा नबियों पर ईमान 2 बातों पर मुनहसर है। पहली बात ये कि हमको नबियों के दरमियान फर्क नहीं करना, यानी किसी भी एक नबी को दूसरे नबियों से बरतर नहीं समझना। और दूसरी बात, तमाम अंबिया को कुरान से जानना है। मसलन, क्या आपको इल्म है कि अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम को क्यों तमाम इंसानों का इमाम बनाया और नबी इब्राहिम ने अल्लाह के घर की बुनियाद किस तरह उठाई? और अल्लाह ने मुकाम इब्राहिम से सलाह लेने का क्यों कहा? और हम दरूद या सल्ली में नबी इब्राहिम की जैसी सल्ली क्यों मांगते हैं? और अल्लाह ने हमारा दीनी बाप नबी इब्राहिम को क्यों बनाया, जिन्होंने हमारा नाम मुस्लिम रखा? इसी तरह हमको तमाम अंबिया को जानना है ताकि तमाम अंबिया पर ईमान ला सकें। जी भाई, मैं कहता तो था कि मेरा तमाम नबियों पर ईमान है, मगर मैंने हमेशा सिर्फ एक नबी को अपना समझा, मगर इनके बारे में कभी कुरान से जानने की कोशिश नहीं की। जी भाई, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने तमाम नबियों पर ईमान लाना है, नबियों के बारे में कुरान से जानकर और नबियों में फर्क ना करके। बेशक। अच्छा भाई, हमने तकवा करने वालों का ईमान किस तरह का हो देख लिया। अब हम तकवा इख्तियार करने वालों के अमाल देखते हैं और लिस्ट बनाते हैं। अब आप सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 177 दोबारा देखिए और बताइए कि हम क्या अमल करके तकवा वाले या मुत्तकी बनते हैं। भाई, इस आयत के मुताबिक अगर मुत्तकी या तकवा वाला बनना है तो माल बावजूद अजीज रखने के खर्च करना है, करीब वालों पर और यतीमों पर
और मोहताजों पर और राह पर चलने वालों पर और सवाल करने वालों पर और खर्च करना है गिरदोनों में, जैसे गुलाम या कैदी या कर्जे छुड़ाने में, और सलाह कायम करना है, यानी जो सलाह में अल्लाह के अहकामात मिलें इन पर अमल करना है, और ज़कात देना है कुरान के मुताबिक, और जब अहद करें तो इसको पूरा करना है, और सब्र करना है सख्ती और तकलीफ में और खौफ के वक्त। जी भाई, अब मुत्तकी की मजीद सिफात देखते हैं। आप सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 से 35 देखिए। भाई, इस आयत के मुताबिक तकवा करने वालों की मजीद खसूसियात ये हैं कि वो खुशहाली और तंगी यानी हर हालात में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर माफ़ करते हैं, और वो कि जब कोई फहश फेल हो जाए या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र यानी कुरान से नसीहत हासिल करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। जी भाई, अब मुत्तकी की मजीद सिफात देखते हैं। आप सूरह नंबर 3 आयत नंबर 15 से 17 देखें। भाई, इस आयत के मुताबिक तकवा करने वालों की मजीद खसूसियात ये हैं, ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं और सच बोलते हैं और किनात करते हैं, यानी जो भी अल्लाह ने अता किया है इसको काफ़ी समझते हैं और खर्च करते हैं, और सहर के साथ यानी फौरी गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं। जी भाई। अच्छा भाई, क्या इनके अलावा और भी खसूसियात हैं तकवा करने वालों की? जी भाई, आप सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 180 देखें। भाई, आयत के मुताबिक तकवा करने वालों की मजीद खसूसियात ये हैं कि वो माँ बाप और करीब वालों के लिए मारूफ यानी कुरान के मुताबिक वसीयत करते हैं। जी भाई, और चूंकि मौत का वक्त कभी भी आ सकता है, लिहाजा मुत्तकी की जिम्मेदारी है कि फौरन कुरान के मुताबिक अपने वालिदैन और करीब वालों के लिए वसीयत लिख दे। अब मुत्तकी की मजीद सिफात देखते हैं। आप सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 241 देखें।
भाई शायद के मुताबिक तकवा करने वालों की मजीद खसूसियत ये है कि वो तलाक देने के बावजूद अपनी मुतल्लका औरत को भी मारूफ यानी कुरान के मुताबिक माल देते हैं। जी भाई, अल्लाह ने मुख्तलिफ हालात में तलाक की सूरत में मुतल्लका औरत को माल देने के लिए मुख्तलिफ अहकाम दिए हैं जिन पर अमल करना मुत्तकी की जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि हम मुत्तकी किस तरह बन सकते हैं। भाई, हम मुत्तकी एक दिन में नहीं बन जाएंगे। हमको इसके लिए कुरान को रोज पढ़ना होगा और पढ़े हुए पर ईमान लाना होगा, फिर पढ़े हुए पर अमल करना होगा तो कुछ तकवा पैदा होगा, फिर कुरान पढ़ना होगा और पढ़े हुए पर ईमान लाना होगा, फिर पढ़े हुए पर अमल करना होगा तो तकवा में इजाफा होगा। फिर इसी तरह मुस्तकिल कोशिश करने से हम तकवा में आगे बढ़ते जाएंगे। आप सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 93 देखें। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल है कि जब हम अपना ईमान और अपने अमाल कुरानी अहकाम के मुताबिक दुरुस्त करके तकवा करने वालों की सफ में शामिल होना शुरू होंगे तो क्या हमारी कोई दूसरों को भी तकवा की तरफ लाने की जिम्मेदारी होगी? जी भाई, आप सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 69 देखिए। तो भाई, एक बात याद रखिएगा कि सूरा 6 और आयत 69 के मुताबिक एक मुत्तकी की दूसरों की तरफ ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को कुरान से नसीहत करें। मसलन जो लोग रोजा रखें उनको बताएं कि रोजा रखें तो तकवा के लिए, और जो लोग कुर्बानी करें तो उनको बताएं कि सूरा नंबर 22 और आयत 37 के मुताबिक अल्लाह तक ना जानवर का होन पहुंचता है ना गोश्त, बल्कि तकवा पहुंचता है। और जो लोग हज पर जाएं तो उनको बताएं कि सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 96 के मुताबिक अल्लाह का घर हिदायत की जगह है, और सूरा नंबर 2 और आयत 197 के मुताबिक अल्लाह ने हज से तकवा बढ़ाने को कहा है। भाई, मैंने तो अल्लाह के घर को हमेशा गुनाह बख्शवाने की जगह समझा और अल्लाह के घर से हिदायत लेने का तो कभी सोचा ही नहीं। तो भाई, अगर हमने अपनी इस्लाह करनी है और तकवा इख्तियार करना है तो सुन्नत रसूल में कुरान को अपना रहनुमा बनाकर अपना ईमान और अपने अमाल तकवा करने वालों जैसे करने हैं। और अगर हमने ये ना किया तो अल्लाह के रसूल अल्लाह से हमारी शिकायत करेंगे, जैसा कि सूरा नंबर 25 और आयत नंबर 30 में बयान किया गया है। तो मेरे भाई, इन अहकामात की घर में मौजूद कुरान से तस्दीक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके रोजा, कुर्बानी और हज के मकसद के बारे में अल्लाह के अहकामात दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाइए।